पूर्वांचल में और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल उस अभी तक का जो रिकॉर्ड में 4 ऐसे डेंगू मरीज पाया गया है। मूशिया है, ये क्या है, मच्छर का बच्चा को खाता है, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव वाला है, इससे ना कोई हम लोग का साइड इफेक्ट है, कोई इससे कोई पोल्यूशन होने का कोई खतरा नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सीधे खुला स्कूल से हो रहा है दोस्तों। आज नेशनल डेंगू डे के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज का ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज डिपार्टमेंट नामसाई की तरफ से डॉक्टर डी यमसा DRCHC नामसाई डिस्ट्रिक्ट और उसका टीम हमारे स्कूल में डेंगू से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम देने जा रहा है दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है दोस्तों, मेरे साथ बने रहे। We celebrate every year. Okay, this is National Dengue Day. So here are some members from district medical direct you or tell you about this dengue, how to prevent or how the dengue disease caused. Okay, so on behalf of principal sir, we the family of Kunlai Public School welcome you all to continue your program. Thank you. तो हम लोग अपना प्रोग्राम प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे जो एक्सटेम्पर स्पीच के लिए जो भी है रेडी 1 by 1 आ जाइए ना। Good afternoon to all respected teachers and all the attendees. Today I am standing here to say about dengue. It is an infectious disease transmitted by a female mosquito caused by the virus. Dengue fevers, flu-like symptoms such as high temperature, fevers, headache, muscles and joint pains, vomitings. Thank you. Good afternoon to all respected teachers and all the attendees. Today I am standing here to say something about dengue. It's an infectious disease transmitted by a female Aedes mosquito. Dengue virus is a cause by the mosquitoes. Dengue causes flu-like symptoms such as nausea and vomiting, muscle and joint pain, high temperature fever, and severe headache. Thank you. Good afternoon everyone, respected teachers, all the attendees and my dear brother and sister. Today I am standing here to say something about dengue. Dengue is a disease caused by the transmission of mosquito. This mosquito is called Aedes mosquito and also known as tiger mosquito. It is a virus that only mosquitoes carry. This causes the disease dengue. Symptoms such as high fever, facial flushing, skin rashes, etc. Thank you. Good afternoon to all respected teachers and to all the medical staffs all over present here. And my name is Monisha Lokia of 8th standard. Today I am going to tell you all about the dengue disease. Dengue is a virus caused by the female Aedes mosquito and also known as tiger mosquito. In India there are 2 species that are Aedes aegypti and Aedes albopictus. It has 4 stages of life cycle, that is egg, larva, pupa and adult. Mosquitoes lay their eggs on the containers of water and above a water line. There are so many symptoms of this disease that are muscles and joint pain, severe headache and vomiting, nausea. Use bed net and in it properly. We should clean the environment. We should wear long sleeves and long pants.
Clean regularly and avoid stagnant of water. Cover the water tanks also. Thank you. Respected teachers and our aides, my topic is about dengue. Dengue is transmitted by the bites of Aedes mosquitoes and caused by virus. Dengue fever, flu-like symptoms such as headache, muscles and joint pains, vomiting, etc. The Aedes mosquitoes, which is also known as tiger mosquitoes, the breeding Aedes mosquitoes cities during monsoon and post-monsoon period. Thank you. I'm Dr. Kopayam sir. Basically, I belong to Western district and I belong to the Karo tribe. Working here in Namsai district for more than 4 years now. Actually, I am working as a district RCS officer, Reproductive Child Health Officer of Namsai district, looking after many programs. However, the program in charge of this division, Viral Vector-Borne Disease Program, is on leave, and I am here to substitute today. It is very nice to see our young students, very inspiring students, to participate in such a program where you have something to help to your students and to us also. And your in-depth knowledge in dengue is tremendous. During my period, we didn't know about dengue. We only knew about malaria, that's all. कोई और डिजीज हमें पता नहीं था उस समय, आज से 30-35 साल पहले। तो आज आप लोगों को देख के बहुत खुश हूँ कि आप लोग मतलब डेंगू के बारे में पता है, कि मच्छर के बारे में पता है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ में डेंगू इज वेरी लेसर नोन डिजीज इन पार्ट्स ऑफ आवर स्टेट और इन द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. दिस इज वेरी मच प्रिविलेंट इन those metropolitan cities, especially in Delhi. Some 20 years back, I worked for AIMS in Delhi, in medicine department, where we found there is a separate ward, separate department for control and treatment of dengue. By this, you can just have an idea how big, how magnified is the dengue disease in those parts of the country. तो समझ रहे हैं ना बच्चे. मैं 20-25 साल पहले जब एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम किया करता था, उस समय वहाँ मैंने पाया कि डेंगू बीमार के लिए अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग ही डिपार्टमेंट है, अलग ही वार्ड है, अलग ही डॉक्टर्स नर्सेस का सेटअप है, और डेली रोजाना 50 से ज़्यादा डेंगू पेशेंट्स एडमिट हुआ करते. तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेंगू का जो डिजीज का प्रकोप है कितना बड़ा है हमारे बड़े बड़े सिटीज़ में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही कम सुनने को मिलता है. लेकिन आप लोगों को सुनाई दिया, यही बहुत काफ़ी है. तो हमारे अरुणाचल में नामसाई डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल अभी तक का जो रिकॉर्ड में 4 ऐसे डेंगू मरीज पाया गया है, लेकिन पिछले साल 3 ऐसे मरीज थे डेंगू बीमार थे. लेकिन वो सब यहाँ पे इंडिजिनस नहीं थे, जो बाहर से आए हुए थे. वहाँ बाहर में इन्फेक्ट करके जो डेंगू बीमार होके आया था, उन्हीं लोग को मिला है. हमारे यहाँ में जो डेंगू का खतरा है अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में जैसे कि नामसाई का जो आवाजाही है, इसके चलते हमें लगता है कि यहाँ भी बढ़ने का बहुत चांसेस है. ऑर्गेन्स में, हमारे बदन में, हमारे शरीर में जो डेंगू जो बीमार है खुद ब खुद उड़ के या चल के नहीं आता. इससे क्या होता है कि मच्छर जो इन्फेक्टेड मच्छर है, जिसे कि डेंगू का जो जिसको कि पेट में जो डेंगू का एक तो पता चल गया कि ये मच्छर काटने से होता है. जब मच्छर तुम्हारा बदन के ऊपर स्किन में या बॉडी में काटेगा, तो वो जो अंदर का जो वायरस है वो उसका चोंच के
निकाल के आपका बदन में आ जाएगा। तो बॉडी में आ जाएगा तो वो डेंगू बीमार ग्रो करना शुरू करेगा। और सिर्फ जैसे कि तुमने बताया कि सही तरह से बताया कि इसका साइंस एंड सिम्टम्स तब डेवलप होता है। ठीक है, मैंने आइडेंटिफाइड पॉइंट जो है जो शायद आप लोगों को छूट गया है, क्योंकि इसको एकदम ऑन क्रैकिंग फीवर है, मतलब हड्डी पसली तोड़ने वाला बुखार। ठीक है ना। नाउ दिस साइड वो हो गया ना, पोजीशन पहले किया, पहले सुनिए, हड्डी पसली तोड़ने वाला बुखार, ऑन क्रैकिंग फीवर 102 से ज्यादा 104 जब हो जाएगा तो आपका जो ब्रेन में जो भी नरिशमेंट मिलना है, जो खून मिलना है, वो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो आपका चक्कर आने लगेगा। अगर चक्कर आने लगेगा तो अगर तब भी इलाज नहीं हुआ तो वो बेहोश कोमा में चला जाएगा। ऐसे करके देखो, ठीक है। ये मतलब सिम्टम्स का किस तरह से प्रोग्रेस होता है, किस तरह से ये डेंगू बीमार वो जानलेवा होता है। तो वायरस बोले तो 4 तरह का है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 तरह का वायरस। लेकिन उसका डायग्नोसिस हम आमतौर पर बताने नहीं सकेगा, इसको लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी होता है। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस का फैसिलिटीज भी अपने यहाँ नासा में है, इसके हॉस्पिटल अभी यहाँ डायग्नोस कर सकते हो। इट इज अ टेस्ट होता है, वो हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है। ये डायग्नोस्टिक जो सुविधा है डायग्नोसिस का। तो जो जिसको कि ज़्यादा ही बुखार हो रहा है और फ्लू लाइक जैसे अभी सर्दी खांसी जैसे होता है ना आमतौर पर, उस टाइप का है, लेकिन जोर ज़्यादा है और ब्लीडिंग खून का चमड़े का अंदर स्किन आपको दिख रहा है कि कुछ खून का धब्बा लगा, या तो काम से ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई बेहोश हो गया, या इस तरह का होने से हम डाउट कर सकते हैं कि वो डेंगू हो सकता है। लेकिन तब तक डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगा जब तक वो लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होगा। तो ये एक है। और कोई बताया था ये वायरस आप लोगों के स्पेशली RNA जो डेंगू वायरस होता है इस तरह का बना हुआ है वायरस, ठीक है। और इसका आज अगर इन्फेक्शन हुआ, मान लो कि आज हमको मच्छर जिसने इन्फेक्टेड मच्छर का वो हमको काट दिया, तो आज से लेके 8 या 10 दिन तक इतना टाइम लगता है इसको डेवलप करने के। जैसे अभी खून निकालने का भी बहुत है, अगर खून निकालने से ही बहुत लोग मानेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गया। जब तक बुखार है कोई आजकल के दिन में इतना पैरासीटामोल खा के या कुछ करके साथ रख लेता है, लेकिन जब काम से या कहीं से इसको डेंगू हेमोरेजिक की बात होती है, यही सब। तो अगर ऐसा होता है तो तुरंत सबसे जो पहला काम है आपके तरफ से जो करना चाहिए, तो आप मेडिकल अटेंडेंस लेना चाहिए, इलाज है, ठीक है। वो अगर कंट्रोल होगा तो आपको बॉडी भी सुरक्षित रहेगा। इसका बाद शॉक अगर होता है, इसके लिए भी आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करा। तो पहला तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एज ऐसा यहाँ में हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में मैनेजमेंट में वो पैरासीटामोल देते हैं, दूसरा कोई टैबलेट नहीं देता, क्योंकि एस्प्रिन जो हार्ट डिजीज में भी देता है, एस्प्रिन जो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वो खून जमने से ही खून को ही गीला कराता है। एस्प्रिन नॉलेज होगा, एस्प्रिन कोई हार्ट डिजीज का है, घर में है कहीं में, तो एस्प्रिन भी पैरासीटामोल का काम करता है, उसको लेकर ऐसे नहीं करते। पैरासीटामोल लेना है, ले सकते हैं, वो टेम्परेचर को कम करने के लिए स्पॉन्जिंग करा दीजिए घर में, ऐसे करके तुरंत हॉस्पिटल 108 या हॉस्पिटल में रिपोर्ट करिए। यही सबसे बढ़िया इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा। और वहाँ पर जब डायग्नोस होगा ये डेंगू है, तब क्या करेगा आपका जो अभी बच्चों ने बताया, अगर आपको हो गया तो हो सकता है कि वो मच्छर किसी दूसरा को निकाल दिया होगा, या तो वो फिर बाहर जाके नाले में अंडे दे रहे होंगे, उधर भी पल रहे होंगे। तो वो जो प्रिवेंटिव एक्शंस
अगर पता चला तो उसको प्रिवेंटिव एक्शन लेने का मौका मिलेगा और लेना भी चाहिए। अगर नहीं होगा, यहाँ में एक बच्चे को हो गया, कल को देखेगा 2 दिन 3 दिन में 10 हो गया, इसके बाद 20 हो गया, ऐसे होगा, क्योंकि वो मच्छर हर किसी को काटेगा। तो इसीलिए जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स बच्चों ने बताया, जैसा कि मच्छरदानी के अंदर धोना है, और ये जो स्टेगनेंट पानी है, वाटर है, जो पानी जम रहा है जहाँ तहाँ नाले में या कोई कंटेनर में, तो जमने नहीं देना चाहिए। खासकर ये मौसम में, गर्मी का मौसम में और मानसून का मौसम में इसमें जमने से रोकना चाहिए, ताकि मच्छर उधर बैठ के अंडा ना दे सके। अंडा देगा, फिर ग्रो होगा, फिर बढ़ जाएगा, क्वान्टिटी जो नंबर्स बढ़ जाएगा, फिर दूसरा कितने लोगों को, कई लोगों को इन्फेक्शन होगा, ठीक है। वो एक तो तरीका है जिससे कि होता है। और एक चीज़ है, ये जो मच्छर जो होता है, हम सोचते हैं कि मच्छर जो गंदे नाली में ही अंडा देते, ऐसे नहीं है। ये जो साफ पानी, क्लीन वाटर में ही वो अंडा देता है। हम सोचते हैं कि यही गंदा जगह में वो कहता है उसी को साफ करना, हमारा नजर भी वही पड़ता है कि उसी को साफ करना। ऐसा नहीं है, साफ पानी को ही साफ करना है इसके, ताकि वो वहाँ बैठ के फिर से रिसाइकलिंग प्रोसेस जो 4 स्टेज बताया, एक टुकड़ा करके बेकार करके ना बने, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत सही तरीके से बताया। तो जितना भी अभी पार्टिसिपेंट्स है, सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप जीत गए हैं सब। ऊपर नीचे कोई होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कोई होगा, लेकिन जितना 8-9 बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे ऑल आर विनर्स टुडे। एंड मोर देन दैट, योर पार्टिसिपेशन हियर टुडे, बाकी जो बच्चे हैं आज डेंगू के बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए आए, फिर उन सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आपने सही दिन सही समय सुना है। और आगे चल के अगर हमारे डिपार्टमेंट में 5-10% भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका खुद का भलाई होगा, फैमिली का होगा, स्कूल का होगा, और हमारे कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। पार्टिसिपेट किए उन सबको देखा है, बहुत अच्छा से लिखा है कि नहीं? बहुत सुंदर से अच्छा से लिखा है, लेकिन किसी को कंफ्यूजन नजर आया है। कोई बोला है कि डेंगू मच्छर रात को करता है कि नहीं? कोई लिखा है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए, रात को भी मच्छर काटता है हम लोग को, है कि नहीं? हम लोग भी पहले मालूम नहीं था कि कौन सा मच्छर कब काटने से क्या बीमार होते हैं। अभी हम थोड़ा वेक्टर के बारे में बताएगा। वेक्टर मीन्स क्या? क्लास 8 स्टूडेंट, वेक्टर क्या है? वेक्टर मीन्स कैरियर, है कि नहीं? तो हम लोग इधर अभी देखो, हम लोग इधर क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से आए हैं, है कि नहीं? और आज हमारा स्पेशल डे है, हम लोग नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। आज का दिन में हम लोग क्यों नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व करता है? आज का दिन सबको हम लोग अवेयर करता है डेंगू क्या है, डेंगू किससे होता है कि नहीं? तो डेंगू किससे होता है? मच्छर काटने से होता है ना। ऐसा देखने से हम लोग को सब मच्छर सेम ही लगता है। जब तक हम लोग उसको पकड़ के अच्छा से ध्यान से नहीं देखेगा, हम लोग को मच्छर में सब मच्छर हम लोग को सेम लगता है, बट ऐसा ही नहीं। सब लोगों ने थोड़ा पहले भी एग्जाम्पल स्पीच में भी बोला है कि इंडिया में एडिस मस्कीटो का 2 स्पीसीज मिलता है। नो, एडिस मस्कीटो का आपका इंडिया में आपको मोर देन 300 स्पीसीज मिलेगा, ठीक है? लेकिन क्या है, वो सब स्पीसीज जो डेंगू नहीं फैलाता है, सिर्फ आप लोगों ने बताया है एडिस एल्बोफिक्टस और एडिस इजिप्टिस। नो डाउट हम लोग नॉर्थ ईस्ट में इधर में जो है, ये 2 ही क्या फैलाता है? डेंगू फैलाता है, ठीक है? पहले कैरी करके एक इंसान से दूसरा इंसान को पहुंचाता है, राइट? तो मच्छर जो ये क्या है, मच्छर से होने वाला बीमार कितना है आप लोग पता है? कौन सा बीमार मच्छर से होता है? जोर से। मच्छर से हम लोग का ये वेक्टर बॉर्न, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर 6 डिजीज है, 6 डिजीज है जो मच्छर से फैलता है।
6 में से एक है फ्लाइज। 5 डिजीज जो हम लोग का क्या है, मच्छर से फैलता है। क्या क्या नाम है मालूम है? मलेरिया है कि नहीं, डेंगू सुना है, जेई बीमार सुना है, जापानीज एनकेफेलाइटिस सुना है। जेई बीमार में क्या होता है, मच्छर से फैलता है। और होता है फिलारिसिस, है कि नहीं। फिलारिसिस भी एक बीमार है जो मच्छर से फैलता है। पाँव इतना मोटा मोटा होता है। अभी का समय में तो नहीं देखने को बहुत कम ही मिलेगा। एलिफेंटाइटिस बोलते हैं हम लोग वो बीमार को, ठीक है। वो सब भी क्या से फैलता है, मच्छर से फैलता है। लेकिन ये 5 में से हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में मच्छर से फैलने वाला बीमार कितना है पता है? हम लोग का इधर में जो हम लोग का ऑफिस में ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट किया है वो है मलेरिया, डेंगू, जे, काला अजहर, फिलारिसिस। ये अभी हम लोग का इधर में अभी तक रिपोर्ट नहीं है। चिकनगुनिया भी है, वो हम लोग का नामसाई में नहीं है। नामसाई में अभी सिर्फ क्या बीमार हम लोग को मिला है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर बाद में नहीं मिलेगा। हम लोग अगर खुद को अच्छे से केयर नहीं करेगा, मच्छर से खुद को नहीं बचाएगा, हम लोग को क्या होगा, बाद में वो काला अजहर, चिकनगुनिया भी हम लोग को हो सकता है। फिलहाल अभी हम लोग का इधर में 3 डिजीज है। क्या क्या था? मलेरिया, डेंगू, जे। अभी आता है मलेरिया। मच्छर का नाम क्या है पता है? मलेरिया, जिस मच्छर से मलेरिया फैलता है वो मच्छर का नाम क्या है? एनोफिलिस, ठीक है। मलेरिया से जो फैलता है, वेरी गुड, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल। जितना भी मच्छर आपको काटता है वो फीमेल होता है। मेल मच्छर यूजुअली उन लोग को ब्लड नहीं चाहिए होता है, इसलिए उन लोग ह्यूमन या एनिमल में फीड नहीं करते। एनिमल या जो हम लोग ह्यूमन को जो मच्छर करता है वो फीमेल होता है, ठीक है। डेंगू मच्छर का नाम क्या था? एडिस मस्कीटो। और जेई हम बताए, जेई मच्छर का नाम क्या है पता है? क्यूलेक्स। मच्छर भी अभी क्या है, इतना इंटेलिजेंट, उन लोग टाइम डिवाइड करके रखा है, ठीक। क्यों बोलने से आप लोग थोड़ा पहले बताया, डेंगू मच्छर कब करता है? डे टाइम को करता है। रात को जब हम लोग सोता है तब कौन सा मच्छर करता है पता है? एनोफिलिस, मलेरिया मच्छर, वेरी गुड। और जब धूप निकलने से पहले या धूप डलने के बाद जो गस्की वाला होता है ना, उसमें कौन सा मच्छर करता है पता है? क्यूलेक्स मस्कीटो। तब ज्यादा एक्टिव होता है। देखो सब अपना अपना टाइम डिवाइड करके रखा है। सुबह शाम को कौन करता है? क्यूलेक्स मस्कीटो। रात को कौन करता है? मलेरिया मच्छर। दिन डे टाइम को कौन सा मच्छर करता है? एडिस मस्कीटो। जिससे क्या होता है? डेंगू, ठीक। मच्छर भी अपना टाइम डिवाइड करके रखा है। रात का वाला मलेरिया, सुबह शाम का वाला क्यूलेक्स जो जेई होता है, डे टाइम को जो करता है वो एडिस होता है, ठीक है नहीं। तो एडिस मस्कीटो जो कैसा है देखने में, आप लोग पता है एडिस मस्कीटो कैसा है? बहुत लोगों ने कल बहुत अच्छा से लिखा है। उसका बदन में क्या होता है? ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप होता है कि नहीं। लेकिन ऐसा वाला मच्छर तो इधर घास भूसा में भी मिलता है, बेम्बू का ट्री का नीचे में भी मिलता है। वो सब एडिस है क्या? वो एडिस है? नहीं, वो एडिस नहीं। जो बड़ा बड़ा करके जो बेम्बू गच्छी का नीचे या घास भूसा में जो मिलता है वो मच्छर का नाम क्या है पता है? उसको हम लोग बोलते हैं अर्मीजेरस मस्कीटो, अर्मीजेरस मस्कीटो। लेकिन वो काटने से हाँ थोड़ा बहुत आपको एलर्जी हो सकता है, खुजली होगा, लेकिन ऐसा तो अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उससे मतलब ये बीमार पैदा है, ठीक है। जो जंगल में अभी आप लोग जाने से बड़ा बड़ा मच्छर होता है ना, वो टाइगर मस्कीटो नहीं है, ठीक है। टाइगर मस्कीटो जो एडिस मस्कीटो, वो जो अभी आपको हम अर्मीजेरस मच्छर बताया उससे 10 गुना ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। डेंगू मस्कीटो जो एडिस मस्कीटो बहुत एक्टिव होगा। एमोंग जो अभी हम 3 मस्कीटो का नाम बताए, क्यूलेक्स और एनोफिलिस, उससे भी ज़्यादा एक्टिव, डे टाइम में एक्टिव होता है कि नहीं। अच्छा, तो अभी हमें क्या है, डेंगू का बारे में तो आप लोग मालूम हो गया है कि नहीं। डेंगू किससे होता है वो भी मालूम हो गया, मच्छर का नाम भी मालूम हो गया है कि नहीं। अभी डेंगू से बचने के लिए हम लोग क्या करना है? खुद को मच्छर से बचाना है कि नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं,
बीमार नहीं होना है तो मच्छर को खुद को काटने से बचिए या फिर मच्छर को पैदा होने मत दीजिए। ये बोलते हैं हम लोग, आप खुद को मच्छर काटने से बचो, पर्सनल प्रोटेक्शन है कि नहीं। मच्छर को आप खुद को काटने से कैसे बचेगा? लंबा कपड़ा पहन के खेलते समय, है कि नहीं, क्योंकि मच्छर आपको तीनों टाइम में काटता है। तो आप फुल स्लीव लंबा कपड़ा पहन के बाहर जाने से भी खेलना है। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम वगैरह यूज कर सकता है। और आप मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं जैसे कि ओडोमोस वगैरह है, ये सकता है बैम्बू का वो ये करते हैं ना, बेरा बनाता है ना। बेरा बना के क्या करता है, बैम्बू का बेरा बन गया, ऊपर में 6 डे बारिश आने से पानी जमा होता है, उसको कोई ध्यान नहीं किया, है कि नहीं, उसमें भी मच्छर पैदा होता है। और क्या होता है, हम लोग फ्लावर पॉट घर में बहुत लेडीज लोग बहुत इंटरेस्ट होता है कि नहीं, घर में फ्लावर पॉट रखना, उसमें भी पानी जमा होगा, हम लोग चेंज ध्यान नहीं करेगा तो मच्छर, इतना छोटा पानी में भी बहुत सारा मच्छर पैदा होता है कि नहीं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप खुद को मच्छर काटने से बचा नहीं सकते तो मच्छर को ही पैदा होने मत दो, ये बोला था ना। तो मच्छर को पैदा होने नहीं देने का मतलब आप सोच रिडक्शन करो। और ये तो हो गया वो बाहर का जो चिप्स पैकेट है। और एक हम लोग प्लांट, जैसे कि हम लोग सुंदर सुंदर प्लांट लगा रहे हैं, प्लांट का एक्सिल क्या बोलता है, दाल बोलता है क्या, हाँ एक्सिल, उसमें भी तो पानी जमा होता है कि नहीं। कोई इतना सुंदर सुंदर पत्ता का प्लांटिंग करता है, गार्डनिंग करता है, उसमें भी छोटा छोटा होल में पानी जमा होता है। वो सबको हम लोग क्या करना है, ध्यान देना है, ध्यान दे के मच्छर पैदा नहीं होना है, मच्छर पैदा होने का जगह को खत्म कर देना है। ठीक, पीस है लर्विपोरस पीस, गप्पी और गम्बुशिया नाम का छोटा छोटा मछली होता है जो मच्छर का क्या है, लर्वी को खाता है। तो अभी ऐसा है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में लर्विपोरस पीस हम लोग प्रोग्राम की ओर से हम लोग का ऑफिस में है, ऑफिस में आई मीन एवरी PSC CHC में टैंक बना के रखा है। व्हेनेवर आप लोगों को लगेगा कि आप लोग का स्कूल कंपाउंड या कहीं में जो ऐसा फोन जैसा है या फिर कुछ जहाँ में पानी जमा है, आप लोग खाली नहीं कर सकता है, ऐसा अगर कोई है तो वाटर बॉडी यूज उसमें तो आप हम लोग से मछली ले सकता है। तो DPO डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर MPDCP के इधर से आप वो मछली इसमें दिखाने से आप लोगों को दिखा सकते हैं, ये मछली है, ये है मछली। ये हम गप्पी तो हम लोग का पास नहीं है, हम लोग का पास गम्बुशिया है। ये क्या है, मच्छर का बच्चा को खाता है, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव वाला है, इससे ना कोई हम लोग का साइड इफेक्ट है, कोई इससे कोई पोल्यूशन होने का कोई खतरा नहीं होता है। ये बहुत सेफली बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिससे हम लोग मच्छर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और ये अगर आप इसको टोटली अगर कहीं में ऐसा जगह है जो आप पानी खाली नहीं कर सकते है, ऐसा वाला में अगर आप चाहे तो हम उसे ले सकते हैं। तो एवरी PSC CHC में अभी ये बना के रखा हुआ है, मतलब स्टोरेज टैंक। हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैचरी है, तो अगर आप मछली चाहिए होने से तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर करके आप ले सकते हैं। और ये कोई लोग तो पर्सनल यूज के लिए भी हुआ है, लाइक डेकोरेशन कोई बहुत। और ये हम लोग इसमें पगोदा आपने दिया होगा, उसमें भी जहाँ पे बड़ा बड़ा वाटर टैंक है, जहाँ पे लोटस वगैरह वो सब में भी हम लोग डाला है। नामसाई मंदिर में नाला वाला हम लोग बहुत सारा जगह में छोड़ा हुआ है। ये हम लोग का बायोलॉजिकल कंट्रोल है, मच्छर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, डेंगू नहीं होता है। हाँ, डेंगू जब तक आपको इन्फेक्टेड एडिस मस्किटो आप लोग को नहीं कटेगा, डेंगू नहीं होगा, ठीक है। और डेंगू का मच्छर जो क्या है, ये एक चीज हम थोड़ा सा ऐड कर देगा। हम लोग जो बोल रहा था मलेरिया एक प्रोटोजन डिजीज है जो एनोफिलिस मस्किटो में होता है कि नहीं। क्या होता है, अगर एनोफिलिस मस्किटो जो उसका अंदर में मलेरिया का पैरासाइट है, वो आदमी को काटेगा, बीमार होगा, वो मच्छर को बीमार होगा। और वो बच्चा जन्म देने से भी जेनेटिक ट्रांसफर नहीं होता, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
वो एक मच्छर इन्फेक्टेड है वही दूसरा को काटेगा। बट इन केस ऑफ डेंगी में क्या होता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर करता है वो वायरस को। जो डेंगी क्या है, एक वायरल डिजीज है। डेंगी इज ए वायरल डिजीज। किसके काटने से होता है? एडिस मस्कीटो, है कि नहीं? वो इन्फेक्टेड एडिस मस्कीटो आदमी को काटने से तो डेंगी हो गई, लेकिन अगर वो अंडा देता है, उसका अंडा में भी क्या जाएगा? डेंगी वायरस जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक? ये हम मेरा इसको खत्म करेगा। हाँ, कुछ सो मच सब लोग इतना Barbara of class 6. It's a huge honor and huge privilege to propose vote of thanks on this great occasion. First of all, on behalf of District Health Society, I would like to thank Vice Principal Punlai School for allowing us to conduct this program in your campus. My heartfelt thanks goes to Dr. Yongcha DRCHO Namsai for coming despite his busy schedule and facing the occasion. My sincere thanks goes to Yaka consultant for enlightening us regarding dengue. Also, thanks to all the faculty members of Punlai School and all the staffs, medical staff. Also, thanks to all the students out here. I hope you all have learned a lot about dengue. Once again, thank you to all. ये देखिए, ये लाइट रिफ्रेशमेंट पूरा रेडी है। आई थिंक ये केक होता है। तो निकाल देगा क्या बच्चा? नहीं, क्यों निकालेगा? वो लोग छोड़ देगा ना। केक है, आई थिंक ये कुछ मैंगो है, वाटर है। ये है मेडिकल डिपार्टमेंट का तरफ से लाइट रिफ्रेशमेंट। सो दोस्तों, प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अभी फ़िलहाल लाइट रिफ्रेशमेंट दे रहा है। ये है मेडिकल की तरफ से, मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो कि प्रोग्राम कंडक्ट किया था। ये देखिए, ये है लाइट रिफ्रेशमेंट दे रहा है। मैंगो क्या है ये? पानी। देखिए, सब लोग मिल चुका है। लाइट रिफ्रेशमेंट हो चुका है। देखिए, सब लोग को मिल चुका है। प्रोग्राम खत्म हो गया दोस्तों। सब अपना अपना कोई कोई हॉस्टल में जाएंगे, हम ही पिएंगे। एक पानी बता दिया था जो कि स्कूल का मेडिकल का तरफ से। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी गर्मी है, जो कि डेंगू के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है। अगर आप लोग को कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। 3 दिन